السلام جناب سرمد حسین صاحب اسسٹنٹ جنرل مینیجر آپریشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج جناب جویز صاحب جنرل مینیجر آپریشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور معزز اراکین بچے سے عاملہ السلام علیکم. میں جناب صدر حسین صاحب ان کے رفقا جناب جویز صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے گجرانوالہ کی کاروباری برادری کو آگاہی کے لیے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اس اہم اور معلوماتی سیمینار کا اہتمام گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں کیا. آج کا یہ سیمینار یقیناً گجرانوالہ کی صنعت کار و تاجروں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے ایس ایم ای سیکٹر کا تحفظ بہت ضروری ہے. ایس ایم ای سیکٹر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اسٹاک ایکسچینج صرف بڑی بڑی کمپنیاں ہی سرمایہ کاری کر کے اپنے مفادات حاصل کرتی ہیں. اسٹاک ایکسچینج نے ایس ایم ای سیکٹر کی مضبوطی کے لیے اسٹاک ایکسچینج نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں، ان کے متعلق ہمارے آج کے مہمان ہمیں بہتر طریقے سے تفصیلاً آگاہ کریں گے. جدید اور نیٹ نئے معلومات سے پوری دنیا تیزی سے ترقی مناظر طے کر رہی ہے. دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج بن چکی ہے اور انٹرنیٹ نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر رکھا ہے. کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی معلومات چند سیکنڈ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں منتقل ہو رہی ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گجرانوالہ چیمبر اپنے اراکین کی معلومات کے لیے وقتاً فوقتاً آگاہی سیمینار اور ورکشاپس کا اہتمام کرواتا رہتا ہے تاکہ کاروباری لوگ اس سیمینارز اور ورکشاپس کے ذریعے نئی نئی معلومات کا حصول کر کے اپنے کاروبار کو نئے اور جدید طریقے سے اہم کر سکیں. آج کے سیشن بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے معزز مہمان سے گزارش کروں گا اس سیشن کو آگے بڑھائیں تاکہ کاروباری لوگ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ مقصد پورا کیا جا سکے. میں آپ سب کی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو اس سیشن میں تشریف لے کے آئے اور میں اس مقدس ماہ رمضان کے مہینے کی بھی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد میں لوگوں کا دھیان رکھیں اور جو لوگ اس ماہ رمضان میں کسی مشکل میں ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کا بھی خیال رکھیں. آپ لوگوں نے رکھیں یا آپ کے گھروں میں معاملات ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے تو آپ ان کے پر بھی دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ناصر اور آپ کے گھروں میں مطلب مہربانی اور اپنے اعتدال میں شمار. بہت شکریہ. میں جناب صدر حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کی بات کریں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. شکریہ اور میں شکر گزار ہوں کہ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی سے اور کے ریپرزینٹیٹو اور کمپنی اونرز یہاں پہ آئے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک نیشنل اسٹاک ایکسچینج ہے اور کوئی اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے اور ہم پورے پاکستان میں بزنس کمیونٹی سے ہماری 2-3 سالوں سے ملٹیپل میٹنگس اس گجرانوالہ چیمبر میں بھی یہ ہمارا تیسرا یا چوتھا سیشن ہے اور ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جیسے صحیح کہا کہ بڑی کمپنیز کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. وہ کمپنیز آ کے سرمایہ اکٹھا کرتی ہیں اور اپنے بزنس میں ایکسپینشن کرتی ہیں. واٹ اباؤٹ دا ایس ایم ایز، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، فیملی اون کمپنیز، ان کے لیے کوئی آپ انیشیٹو کریں اور جس پہ کمپلائنس بھی کم ہو اور اپنے جو سرمایہ کی جو ضرورت ہے جو کہ ان کے کاروبار کے لیے چاہیے اس کو وہ اکٹھا کر سکے، لے سکے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پلیٹ فارم. یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اینڈ آبویسلی گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہم نے یہ نیا بورڈ ایک لانچ کیا ہے جس کا نام گروتھ انٹرپرائز مارکیٹ بورڈ. ہمارا ایک مین بورڈ چل رہا ہے جس میں 530 لسٹڈ کمپنی ہے اور وہ ایک بڑے کیپٹل 200 ملین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جس میں وہ آ کے اتنا کم از کم ہو تو وہ لسٹ ہو سکتی ہیں اور یہاں سے اپنا وہ سرمایہ اکٹھا کر سکتی ہیں. تھوڑا سا میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا یہ رول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ ایکچولی بیسکلی کس طرح کی سروسز دے رہا ہے. ہمارے ایک طرف تو انویسٹرز ہیں جو کہ اس وقت 282,000 ہیں، 2,82,000 لسٹڈ انویسٹرز ہیں جن کے پاس along with institutional investor بڑے بڑے بینکس ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے پاس سرمایہ بہت ہے اور
कंटिन्यूस सर्च में रहते हैं कि किस बिजनेस में, किस धंधे में इन्वेस्ट किया जाए जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर है, ताकि उनकी जो सेविंग है वो कैपिटल गेन में वो मल्टीप्लाइड हो सके, इस सिस्टम में कैपिटल गेन मिल सके, वो एप्रिशिएट हो सके। दूसरी तरफ हमारे इस सिस्टम में कंपनीज हैं वो स्टॉक मार्केट से रुजू करती हैं और वो अपने शेयर्स के बदले में, जो कि स्मॉल पीस ऑफ ओनरशिप है, उसके बदले में पैसा इकट्ठा करते हैं और वो जब पैसा इन्वेस्टर्स देते हैं वो पैसा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्री में पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सेविंग को उसको मशहूर कर रही है, उसको आसान कर रही है और इन्वेस्टर्स के लिए इन्फ्लेशन लाइक एनिमी, देखिए इन्फ्लेशन इस वक्त स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 13% है। अगर वो आप घर में रखेंगे पैसे तो उसको तो खा जाएंगे वो इन्फ्लेशन, रुपये कैश वो हमारा डॉलर टर्म में देख लें या किसी और इंटरनेशनल उसमें एक्सचेंज करेंसी में देख लें तो वो तो डेप्रिसिएशन की तरफ ट्रेंड है उसका। तो इन सारे सिनेरियो में अगर वो किसी अच्छे प्रॉपर कंपनी में, धंधे में, बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो तो वो पैसा मल्टीप्लाइड होता है, दोनों तरफ इन्वेस्टर का भी फायदा होता है और कंपनी को वो कैपिटल मिल जाता है जिसमें वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अब ये जो है ग्रोथ मार्केट कोड, इसकी जो डेफिनेशन है कि कौन सी कंपनी इसके थ्रू आके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं, ग्रोथ मार्केट ग्रोथ कैपिटल रेज कर सकते हैं, वो कंपनी शुड बी जो इसकी देखें कि बिजनेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं, इस पे बाद में आते हैं। पहले जो बिजनेस एलिजिबिलिटी है कि कौन से लोकल फैमिली ओन बिजनेसेस इस जो ऑफर है उससे बेनिफिट हो सकते हैं कि मिनिमम पेड अप कैपिटल पोस्ट इशू शुड बी 25 मिलियन, कि कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो लिस्ट होने के बाद 2.5 करोड़ रुपया होना चाहिए, चाहे पहले 50 लाख है लेकिन जब वो लिस्ट हो जाएगी तो मिनिमम 2.5 करोड़ होना चाहिए, अपर लिमिट नहीं है, चाहे वो 200 मिलियन इकट्ठा कर ले, चाहे 20 करोड़ कर ले, चाहे वो टोटली डिपेंड किस पे करता है, आपके बिजनेस के ऊपर, बिजनेस मॉडल के ऊपर। अगर वो इन्वेस्टर को समझ आता है कि ये इस बिजनेस में हम इन्वेस्ट करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी मल्टीप्लाइड होगी और वो बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड है, इसीलिए इस बोर्ड का नाम जेम बोर्ड रखा गया है। ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट की वो कंपनी आ सकती है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिनकी प्रोजेक्शन एक्सपोनेंशियल है और हर्डल क्या है, सिर्फ कि सरमाया नहीं, कैपिटल नहीं, और वो जाहिर कंपनी जो चल रही हैं वो अपने डिफरेंट एवेन्यू से पैसा इकट्ठा करती हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, वो पार्टनरशिप करती हैं, वो उस पे ऊपर एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो उसमें कर सकते हैं, फिर कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स भी किसी कोलैटरल के अगेंस्ट प्लस किए बगैर वो आपको लोन नहीं देते, और जो हाई इंटरेस्ट और जो इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में सिनेरियो चल रहा है उसमें वो लॉन्ग टर्म उसका फायदा नहीं है। तो अब दूसरी जो रिक्वायरमेंट है इस बोर्ड की कि कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ पब्लिक लिमिटेड एज अ रजिस्टर्ड हो, उसका स्टेटस वो ना सोल प्रोप्राइटर, ना पार्टनरशिप, ना प्राइवेट लिमिटेड। एट द टाइम ऑफ जब वो लिस्ट होने आ रहे हो, जाहिर उसमें ग्रोथ कैपिटल लेना है, इकट्ठा करना है स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से, तो एसएससीपी में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो एज अ पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए। फिर ये कि उसकी एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें वो अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन रखे, और उसके 2 साल के ऑडिटेड अकाउंट होने चाहिए किसी भी QCR रेटेड फर्म से, ऑडिट फर्म जो कि ICAP में या ICM उसमें रजिस्टर्ड है, वो उसके 2 साल के ऑडिटेड अकाउंट, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो 3 लास्ट रिक्वायरमेंट है इसको वेव ऑफ कर दिया हमने, रेगुलेटर ने, कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, अगर कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई, आइडिया है, अभी उसको कैपिटल, आप बिजनेस आइडिया है लेकिन कैपिटल नहीं है, तो वो हम उसको वो कम्स अंडर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ना 2 साल के ऑडिटेड अकाउंट रिक्वायर्ड, ना प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायर्ड है, ना ऑपरेशनल की रिक्वायरमेंट है, तो वो बट कंपनी शुड बी पब्लिक लिमिटेड, और वो हमारे पास जब आएगी एक्सचेंज के पास उसकी लिस्टिंग एप्लीकेशन तो उसको वो अप्रूव
और डिसअप्रूव अकॉर्डिंगली आइडिया के बेस पे कर सकती है। और इसके लिए ये बोर्ड, क्योंकि इसमें कंप्लाइंस भी कम है और फाइनल अप्रूवल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग कमेटी ने देनी है, इसमें एसएससीबी के पास नहीं जानी। लेकिन एक्सचेंज जो भी बिजनेस है, गुजरांवाला से अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है थ्रू कंसल्टेंट एंड एडवाइजर के थ्रू, तो वो हम उसको उसकी ड्यू डिलिजेंस पूरी करेंगे, क्योंकि जाहिर है अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी नहीं है और वो लॉस में है और वो उसकी, तो फिर उसमें ये उस पे वो पैसा इकट्ठा या कैपिटल रेज नहीं कर सकेगी। इसके प्रोसीजर अब क्या है कि आपने एडवाइजर, कंपनी एडवाइजर और कंसल्टेंट इशू करेगी, पहला स्टेप ये है। अब कंसल्टेंट और एडवाइजर कौन हो सकते हैं? वो कोई भी ऑडिट फर्म हो सकती है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी ब्रोकर हो सकता है जो कि रजिस्टर्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और एसएससीबी का वैलिड लाइसेंस रखता है। वो कंसल्टेंट टू द इश्यूज हो सकते हैं जो कि एसएससीबी के स्पेशली लाइसेंस होल्डर हैं जो कि ये काम करते हैं, और वो इसलिए हमने उसको रखा है कि वो ये इस सॉर्ट ऑफ वन विंडो फैसिलिटी है कंपनीज के लिए जो ग्रोथ कैपिटल रेज करना चाहती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जरिए। वो अब उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? वो आपके फाइनेंशियल्स को ठीक करेगा, आपके जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको रीअलाइन करेगा या रीस्ट्रक्चरिंग करवाएगा, वो आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करेगा, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट डिजाइन करके उसमें कंटेंट को आपको हेल्प आउट करेगा कि कैसे रखते हैं, वो आपका इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम, एक जो बिजनेस का एक डॉक्यूमेंट है कि बिजनेस में क्या क्या उसकी नो हाउ बिजनेस की चल कैसे रहा है, उसको किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट कौन है, उसके जो स्पॉन्सर्स प्रमोटर्स, वो उनकी इंफॉर्मेशन सारी, तो वो ये एक वन विंडो फैसिलिटी है उन कंपनीज के लिए जो इस जेम बोर्ड पे लिस्ट होना चाहते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट भी वो डायरेक्ट लिस्टिंग में भी आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है कंसल्टेंट जब आप लोग अपॉइंट करोगे उसकी एक लिस्ट, एक फी होगी, वो अपनी फी चार्ज करेगा। तो अगर आपकी कंपनी में आपकी इन हाउस फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, तो वो आप डायरेक्ट लिस्टिंग में भी आ सकते हो, आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करने की भी जरूरत नहीं है, और वो डॉक्यूमेंटेशन को समझता हो, वो एसएससीपी से फॉर्म रजिस्टर्ड पब्लिक लिमिटेड करवा सकता हो वो टीम जो है, और वो टीम आपकी बिजनेस की मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी पूरी बना सकता हो, फाइनेंशियल प्लान बना सकता हो। अगर वो इस लेवल की टीम आपकी इन हाउस है तो फिर आपको कंसल्टेंट एडवाइजर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। और इसका कमर्शियल बेनिफिट क्या होगा कि कंसल्टेंट एंड एडवाइजर जो फी चार्ज करता है कंपनी को, वो नॉर्मल जितना कैपिटल आपने रेज किया उसका 2% से लेकर 7% तक वो चार्ज करता है। तो वो भी मतलब वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जाहिर आप डायरेक्ट लिस्टिंग में जा रहे हो। तो लॉ में, रेगुलेशन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ये प्रोविजन है कि वो डायरेक्ट लिस्टिंग में भी आ सकता है। और जब आपने वो अपॉइंट कर दिया कंसल्टेंट एंड एडवाइजर, तो वो फिर आपके उसकी कंपनी की लिस्टिंग एप्लीकेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करेगा और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करके और फिर एक्सचेंज अकॉर्डिंगली उसको अलाउ या डिसअलाउ करेगी। अब इसमें आ जाते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं लिस्टिंग के। देखें, दो तरह के चैलेंजेस हैं फैमिली ओन बिजनेसेस के लिए, या मिड एंटरप्राइजिंग या एसएमई आप उसको कह रहे हैं। नंबर 1 के कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल की रिक्वायरमेंट। नंबर 2 कि हमने ये देखा है और इसको वर्ल्ड बैंक और आईएफसी भी सपोर्ट कर रहा है कि स्टडी शो कर रहा है कि फैमिली ओन बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में 82-85% फैमिली ओन बिजनेसेस थर्ड जनरेशन में नहीं जाते, उससे पहले वैनिश हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है फैमिली ओन बिजनेसेस के लिए कि इंटर जनरेशनल ट्रांजिशन के अब एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 40-50 साल में उस धंधे को, उस बिजनेस को एक लेवल पे लेके आया। अब उसने बच्चे अपने पढ़ाए, वो बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़े, उन्होंने उस पर काम किया। 50% ये होता है कि वो ये कहते हैं कि अब्बा जी ये काम हमने नहीं करना, तो नया वेंचर करें। अब आप पुराना, आपका बिजनेस स्टाइल पुराना है, आपकी कंपनी पुरानी है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है, पूरी वर्ल्ड ओपन हो चुकी है, तो हमें इसको बंद करके कोई नई चीज़ शुरू कर देनी चाहिए। दूसरे सिनेरियो में हमने ये देखा है कि एक फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके 4 बेटे
4 बेटों में बिजनेस डिवाइड हो गया। हमने देखा कि एक ही नाम के 4 आउटलेट्स खुले हो गए थे, 4 लेवल जगहों पे वो चीज़ें बन रही हैं, क्वालिटी डिटोरिएट होती है, और एट द एंड ऑफ डे जैसे निराला स्वीट लाहौर में थे, वैनिश हो गया। गुजरांवाला की मल्टीपल कंपनीज होगी, सियालकोट की कंपनीज हमारे पास एग्जांपल है, गुजरात की, फैसलाबाद की, कि वो 3rd जनरेशन इवन 2nd जनरेशन में, और फिर आपस में एक एग्जिट पे बेचने वाला कहता है कि मेरे कंपनी जो आपने निकलना तो मैं तो इतने रेट पे बेचूंगा, खरीदने वाला कहता है कि नहीं जी मेरी तो कंपनी का रेट ये है। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे बिजनेस लिस्ट होगा तो उसकी एक जो रियल वैल्यू है वो उसमें हर एक को पब्लिकली पता होगी कि ये सपोज 50 रुपए का शेयर है या 100 रुपए का शेयर है। तो जिसने एग्जिट करना है, मुझे अपने फादर का बिजनेस पसंद नहीं है और मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, 25,000 शेयर है मेरे पास, मेरे हिस्से में जो आए हैं, तो मैं अपने शेयर बेच के एग्जिट कर दूंगा। और जो भी खरीदेगा एटलीस्ट कंपनी तो चलती रहेगी ना। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इंटरनेशनल हमारे पास एग्जांपल्स हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, दोनों 150 साल से ऊपर हो चुके हैं, कंपनी चल रही है, लेकिन वो फाउंडर मेंबर वही उन्हीं का नाम है जिन्होंने स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पे तो ये एक जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो लिस्टिंग का मैकेनिज्म है, चाहे वो मेन बोर्ड हो चाहे वो जेम बोर्ड हो, ये आपकी जो इंटर जनरेशनल ट्रांजिशन है इसको भी एड्रेस करती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट को तो एड्रेस करती है, फिर इसका आपका पब्लिक में इमेज एनहांस होता है। जब कंपनी लिस्ट हो चुकी होती है तो पब्लिक देखती है कि जी ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो डेफिनेटली ये ट्रांसपेरेंट बिजनेस कर रही है, ये कोई ना कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। फिर दूसरी बात ये कि आपकी हायर वैल्यूएशन होती है। हम नॉर्मली समझते हैं कि यार मेरी कंपनी का 20 रुपए का शेयर है, लेकिन जब आप पब्लिक के पास आते हो, आप उसको अपनी ऑफरिंग में, पब्लिक ऑफरिंग में लेके आते हो, तो जो इन्वेस्टर है वो उसको देखते हैं कि यार ये कंपनी अब गुजरांवाला में सपोज काम कर रही है और पाकिस्तान के इंडियन शहरों में ये माल सप्लाई कर रही है, तो अगर ये ग्रोथ कैपिटल इसको मिल गया तो ये पूरे पाकिस्तान को छोड़ के तो ये तो इंटरनेशनल भी अपना माल एक्सपोर्ट कर सकती है। तो आज जिसकी शेयर की वैल्यू 20 रुपए है, 20 रुपए में ऑफर किया कंपनी ने, तो मैं एज ए इन्वेस्टर मैं कहता हूँ कि नहीं यार, अगर यार सरदार साहब ये 100 रुपए में भी शेयर ले लो सस्ता है, तो मैं उसको 80 रुपीज पर भी प्रीमियम पे उठाता हूँ। मुझे पता है, मैं विजुअलाइज करता हूँ कि आगे आने वाले 2 साल 5 साल में ये कंपनी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अगर इसी जो प्रोमिसेस हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस है बिजनेस की जो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इट इज वाइड टू इन्वेस्ट टू हायर वैल्यूएशन। फिर जब कंपनी लिस्ट होती है तो जो HR कैपिटल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, वो आपको मिलते हैं। वो और डेफिनेटली कंपनी हमेशा अपने वर्कर की बेस पे, जो मुलाजिम है तो उसके वर्कर उसकी बेस पे उनके शोल्डर पे चल रही होती है। वो जितनी आउटपुट देंगे, जितने वो एफिशिएंट होंगे, तो वो एफिशिएंसी उनकी आपके प्लांट की एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और इसके बाद आपका जो है, जो कैपिटल आप इकट्ठा करते हो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। आप लो कॉस्ट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल आप करते हो, और फिर इंटरनेशनल रेडार पे आ जाती है कंपनी कि पूरी दुनिया में लोग बैठ के ये देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान हर चीज में कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है। वो ये देखते हैं कि यही सैल्यू कि अगर ये बिजनेस अभी अंडर वैल्यूड है, हम हर शेयर में जब इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको देखते हैं कि ये शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो ये हमारे जो शेयर पहले ही हमारी प्राइस अर्निंग रेशो कम है पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर है वो सस्ते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट हमारा स्टेबल हो, चाहे वो पॉलिटिकल, जैसे आजकल हमारा पॉलिटिकल हम एक रफ एंड टफ टाइम से गुजर रहे हैं, और इंटरनेशनल चाहे कोई चीज़ सिनेरियो लाइक पैंडेमिक सिचुएशंस है, लेकिन मार्केट उसको गिरती है लेकिन उसको करेक्शन में भी जाती है। जैसे पैंडेमिक में मार्च अप्रैल 2020 में जो KC 100 इंडेक्स है वो 26,000 के अराउंड चला गया, लेकिन अगले एक साल के अंदर अंदर वो अगेन 43,000 पे था। तो जिसने 26,000 पे इंडेक्स उस पर इन्वेस्टमेंट की और वो उसने तो अपना मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड कर ली। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं। मार्केट हमेशा उसको किसी भी इवेंट को सेंसिटिव है फौरन रिएक्ट करती है। जैसे कल 1200 पॉइंट मार्केट गिरी, आज हमारे पास पॉजिटिव न्यूज है पाकिस्तान में, दैट्स व्हाई मार्केट पॉजिटिव बिहेव कर रही है। तो ये जो है लिस्टिंग के उस मैकेनिज्म में कंपनी के लिए अगर आप देखा जाए तो लॉन्ग टर्म फायदे ही फायदे। और एक लास्ट चीज इसमें मैं जो कहूँगा कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा सारा दिन, हमारे सारे रिसोर्सेज जो ऑनर है उसके
वो डे टू डे उसके बिजनेस रन करने में लग रहे होते हैं। हम फुली ऑक्यूपाइड होते हैं अपने पीएंस की हायरिंग से लेकर बुक्स कीपिंग तक, उसके बाद मार्केटिंग, फिर रॉ मटेरियल की परचेजिंग, फिर कॉम्पिटिटिव लोगों के जो कंपटीशन में प्राइस ऊपर चली थी प्राइस नीचे, फिर वो इंटरनेशनल जहाँ तक कर रहे थे उस पर। अब ये एक पर्सन मास्टरमाइंड जिसने वो कंपनी स्टार्ट करके इस लेवल तक लेके आया है, आप अगर सोचें कि उसके जो रिसोर्सेज हैं उसका माइंड फ्री हो जाए और वो रिसोर्सेज अपना फ्री कर दे और वो बैठ के चेयरमैन की पोजीशन पे जस्ट मॉनिटरिंग फेज में चला जाए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को कंपनी को हैंडओवर करके उसको रन करके मॉनिटरिंग में करे, तो इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली दैट पर्सन कैन क्रिएट मोर देन 20 कंपनीज। अभी वो क्यों नहीं कर पाता कि उसके सारे रिसोर्सेज वो अपने एक डे टू डे धंधे में शाम तक वो ऑक्यूपाई रहता है। अगर वो अपने माइंड को अपने रिसोर्सेज को मास्टर, मैं उसको कहता हूँ हमेशा वो बंदा मास्टरमाइंड है जो कंपनी इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में बिजनेस खड़ा करके उसको एक लेवल तक ले आया है, तो अगर हम उसको थोड़ी सी राइट को गाइडेंस देंगे और उसको वो विजनरी पर्सन है तो डेफिनेटली फिर हमारे पास एग्जांपल आती हैं, निशाद ग्रुप है, पैकेजेस है, लेक्सन है, दाऊद ग्रुप है, अब इंडिया में देखें हमारे नेबर कंट्री में रिलायंस ग्रुप है जिसकी एजीएम फुटबॉल स्टेडियम में होती है, टाटास हैं, टाटास की स्ट्रगल मैं पढ़ रहा था, अभी बात हो रही थी कि उन्होंने उनका जमशेद भाई टाटा 1822 में गुजरात से उठ के बंबई में उन्होंने मूव किया, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्टी नहीं थी, सिर्फ एक पैशन था कि बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट किया। अब उनकी 3rd 4th जनरेशन है रतन टाटा, इस वक्त उनकी तकरीबन 88 कंपनीज हैं जिनमें से 37 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, और लॉट ऑफ वेल्थ क्रिएट उन्होंने पूरी उनके अपने मुल्क के लिए की है। तो ये हम भी ये लाइफ तो एक ही है ना, 50 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन अगर हम विजनरी होंगे, हम एक वेल्थ क्रिएशन उसमें एक मैकेनिज्म बना के दे देंगे तो हमारी 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन 4th जनरेशन और फिर इकोनॉमी और पूरा मुल्क उसमें प्रोग्रेस करेगा। ये एक स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म अगर हम राइटली इसको यूटिलाइज करें, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में अवेयरनेस लें, तो डेफिनेटली ये सोच कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में आ जाएंगे तो वो नुकसान पहुंचा देंगे बिजनेस को, ये गलत है। आप ये देखें, आपको जिस फील्ड का डायरेक्टर चाहिए, अगर आपको आईटी का डायरेक्टर चाहिए, आईटी के मैटर्स हैं तो आईटी वाला एक्सपर्ट बंदा लेके हैं, अगर आपको फाइनेंस का एक्सपर्ट चाहिए तो फाइनेंस का एक्सपर्ट लेके हैं, अगर आपको मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी का बंदा चाहिए, टेक्निकल कोई सॉफ्टवेयर के बंदा चाहिए तो सॉफ्टवेयर का बंदा लेके हैं जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प आउट करे। और ये जो 10 माइंड बैठ के जब बोर्ड में जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बिजनेस की एवेल्यूएशन करेंगे, उसकी नेक्स्ट 10 ईयर 20 ईयर की प्रोजेक्शन बना रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे और अक्रॉस जनरेशन ले जाएगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और गुजरांवाला के लोग बहुत मेहनती हैं, वो पिछले पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर और आज 2022 तक वो अपने डिफरेंट बिजनेसेस को सर्वाइव कर रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्पीट कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के साथ, राइट कैपिटल के साथ हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके एक्सपेंशन के लिए जा सकते हैं और पूरी दुनिया की मंडी हमारे लिए, हम अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए हमें। जाहिर है ये भी सोच ठीक है कि मैंने इतना ही करना है, इतना कमाना तो ठीक है, मैं 50-60 साल का हो गया हूँ, तो मेरी बिजनेस इस लेवल पे है, मेरे बच्चे आगे इसको टेक केयर कर रहे हैं तो ठीक है चल रहा है। गलत अप्रोच वो भी नहीं है, लेकिन जब एक लाइफ टाइम में हमें एक ऑप्शन अल्लाह ताला ने दी है कि हम उसको खेलना तो खुल के खेलो, प्ले बिग। मार्केट है तो पूरी दुनिया की मार्केट है, अमेज़न ओपन हुआ है तो पूरी दुनिया की मार्केट में हम प्रोडक्ट अपनी बेच सकते हैं। हमें सिर्फ उसकी देखना है, स्टडी करना है कि कहाँ पे वो डिमांड है और किस तरह के आइटम की डिमांड है और वो उस आइटम को लोकली कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी लानी है, कौन से एक्सपर्ट लाने हैं और बिजनेस को रजिस्टर्ड कैसे करना है ताकि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर चले, ताकि इंटरनेशनल लोगों और लोकल लोगों का उस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है। तो ये बेसिकली इसका ये आज का जो मैसेज था इसमें ये है। और जेम बोर्ड पे जनरल पब्लिक अलाउड नहीं है, नया बोर्ड है, इसमें ये है कि जो पर्सन जिसकी नेटवर्क 5 मिलियन है वो अपने आप को एफिडेविट लिख के देगा नेशनल ट्रेडिंग कंपनी में कि मेरी नेटवर्क 5 मिलियन है, तो वो उस पर वो बाइंग एंड सेलिंग वो कर सकता है। ये कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट बड़ी मिनिमम है। जो मेन बोर्ड है उस पर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फुली एप्लीकेबल है। फुली एप्लीकेबल मीन कि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें लिस्टिंग के 2 साल के बाद
آپ کے آڈٹ آپ کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے اور ایک وومن شوڈ بی آن بورڈ. یہ ایک کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایگریگیٹ انویسٹرز کا میں نے بتا دیا, اور انسٹیٹیوشنل انویسٹر میں ظاہر ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹرسٹ ہیں, بروکرز ہیں, فنڈز ہیں, وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اس میں پھر ایک اور چیز ہے کہ کمپنی لسٹ ہوگی جیم بورڈ پہ, تو اس کے لیے بھی ہم نے گروتھ کا میکینزم رکھا ہوا ہے. لائک کہ وہ کمپنی چل رہی ہے, اس کا پیڈ اپ کیپٹل 200 ملین کو میٹ کر چکا ہے, 2 سال ہو چکے ہیں, تو دیٹ کمپنی کین بی گریجویٹڈ انٹو مین بورڈ. ہمارے جو مین بورڈ ہے جس پہ 200 ملین پیڈ اپ کیپٹل ہے, اس کے اوپر وہ شفٹ ہو سکتی ہے. اب اس کو کرنا کیا پڑے گا, پراسپیکٹس بنانا پڑے گا, ایس ایس سی پی کی اپروول ہوگی, تو وہ پھر انٹرنیشنل اس مین بورڈ کی وہ کمپنی ظاہر گریجویٹ ہوگی. پہلے وہ ایک سٹارٹ اپ تھا, ایک مڈ سائز کی کمپنی تھی, اب وہ بگ سائز کی کمپنی میں جیسے کنورٹ ہوئی ہے, تو پھر اس کو وہ مور کیپٹل ریز کر سکتی ہے, زیادہ سرمایہ اکٹھا کر سکتی ہے, اور اپنے بزنس کو پھر آگے ایکسپینشن پہ لے جا سکتی ہے. یہ جو 2 کمپنیز ہیں, یہ ابھی ریسنٹلی بورڈ جو لانچ ہوا ہے اس میں لسٹ ہو چکی ہیں. ایک پاک ایگرو پیکیجنگ لمیٹڈ ہے, اور دوسری یونیورسل نیٹ ورک سسٹم لمیٹڈ ہے. دوسری کمپنی ٹیک بیس ہے, اور یہ اوور سبسکرائب ہوئی ہے دونوں کمپنی, اور لوگوں نے, انویسٹرز نے بڑا اچھا اس پہ رسپانس دی ہے. ابھی بھی اس وقت تقریباً لاہور سے 2 کمپنیز کی لسٹنگ اپلیکیشن ہمارے پاس آئی ہے, وہ کراچی ہم نے بھیجی ہوئی ہے. اسی طرح تقریباً مور دین 20 کمپنیز ہیں جو ایڈوانس لیول کی لسٹنگ پروسیس میں پائپ لائن میں ہے, کنسلٹنٹ ایڈوائزرز کے پاس انہوں نے اپوائنٹ کر لیے ہوئے ہیں, اور وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنے کی وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اور یہ اسٹارٹ اپس, گرین فیلڈ پروجیکٹس, ٹیک بیس کمپنیز, اور جو براؤن فیلڈ پروجیکٹس جو کہ جن کو کیپٹل ریکوائرڈ اور وہ گروتھ اورینٹڈ کمپنیز ہیں, وہ اس بورڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور وہ یہاں پہ لسٹ ہو کے اپنی جو چاہے وہ انٹر جنریشنل چیلنجز ہیں وہ یا گروتھ کیپٹل کے دونوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. یہ ایک آج کا جو میسج تھا جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے آپ کے لیے ہم نے دیا ہے. جی تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب, ویری انٹرسٹنگ. اور یہ دیکھتا ہوں کہ ایس ایم ای سیکٹر چھوٹی کمپنیز ہیں ان کو اس کے اپنے کیپٹل کو بڑھانا چاہتے ہیں, اچھا آپشن ہے. یہ اچھا ایشو میرا اس پہ تو آپ کے جو نیو پبلک لمیٹڈ کمپنی جب کوئی بنائے گا تو یہ اس میں مسٹیک وہ ہو سکتا ہے. جی دیکھیں, اگر بزنس پہلے چل رہا ہے اور وہ چاہے پارٹنرشپ میں ہے چاہے پرائیویٹ لمیٹڈ, ٹھیک ہے, یا پروپرائٹر ہے, لیکن وہ اس کی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. اب 2 سال سے چل رہا ہے, 3 سال سے چل رہا ہے, پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ کنسلٹنٹ ایڈوائزر کی ہیلپ کے ساتھ یا خود اگر وہ اتنا ایکسپرٹی ان ہاؤس ہے تو وہ کمپنی کو پبلک لمیٹڈ میں کنورٹ ہو جائے گا, اور پھر جو پچھلے پاس 2 سال سے 3 سال سے اگر چل رہا ہے تو اس کا آڈٹ کروائے گا. وہ جو 2 سال کے آڈیٹ کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ کروا کے اس کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ میٹ کر سکتے ہیں. So this is not for a new business. نیا بزنس گرین فیلڈ میں آ جاتا ہے, یا گرین فیلڈ میں تو ایگزام ہو جاتا ہے نا, اس کے لیے نہ آڈٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, نہ اس میں پروفیٹیبلٹی, نہ پروڈکشن کی ریکوائرمنٹ ہے. بنیاد یونٹ ایک پر آ رہے ہیں, ہاں اس میں آ سکتا ہے. کمپنی کو اس کو پبلک لمیٹڈ سے شروع کرے اور کیپٹل ریز کرنا ہے, کیپٹل ریز کرنے کے بعد اچھا. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ 2 نئی کمپنیز کا ذکر کیا ڈسپلے پہ لکھے ہیں. ایک منٹ صاحب, آپ کو بتا دوں 2 کمپنیز آپ نے کہا یہ پاک ایگرو پیکیجنگ لمیٹڈ, یونیورسل نیٹ ورک سسٹم, یہ اس کا پوسٹ ایشو کیپٹل 200 بلین ہے, اس کا 274.2. یہ شیئر ان کے سٹارٹ ہوئے 8 میں. جی پاک ایگرو اس کی جو ہے وہ 10 روپیز تھی, اسٹرائک پرائز اس کی نکلی ہے 24%. یہ اس پہ یہ لسٹڈ ہے. ہاں لسٹڈ, یہ جمبو پہ چل رہی ہے ٹریڈنگ ہو رہی ہے. یہ کتنی دیر میں؟ یہ تقریباً ابھی 2-3 ماہ پہلے 2-3 ماہ کے اندر یہ 14 میں پیسے بھیجے. اس پہ اسٹارٹ ہوا ہے, اسٹارٹ ہوا یہ ابھی, یہ وہ اسٹارٹس ہیں جن کی لسٹ ہونے کے بعد آئے ہیں ہمارے. جی, اور جو نیچے ہے یہ ابھی نہیں ہے. ہاں جی یہ بھی ہو گیا, اور اس کا 10 روپیز پہ ہے. ابھی اس میں یہ کہ 2 میکینزم ہیں لسٹ ہونے کے, ایک ہے بک بلڈنگ میتھڈ
एक है फिक्स प्राइस। एक बिल्डिंग पे हुआ, एक फिक्स प्राइस पे उसमें 65 पे लिखा है, एक ही 65 है, एक वो बिल्डिंग का 2 दिन का बिल्डिंग प्रोसेस होता है, तो वो फिर IPO प्राइस निकलती है जो फिर उसमें जो पब्लिक ऑफरिंग का उसमें वो निकली है, उसमें जो 24.75 रुपीज़, और जो दूसरी कंपनी है यूनिवर्सल नेटवर्क सिस्टम ने, इसमें ये फिक्स प्राइस ना करके, इसकी फिक्स प्राइस करके पूरी वैल्यूएशन डाल के बता कि हमने 65 रुपीज़ पे शेयर देना, तो 65 का ऑफर होगा। इनकी कितने शेयर तक है अभी ये तो स्टैट्स अभी वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये एक्चुअल इन मिलियंस में जो सब्सक्राइब थे वो 366 मिलियन की पहले की थी आगे अमाउंट, और 750 मिलियन की जो है जी मियां साहब आप सवाल करना चाहते हैं? सवाल क्या करना है कि बात इस मकसद के लिए हमें बुलाया गया है, ये ज़्यादा वो बिल्कुल 4-5 रुपये में आ गए, तो हमारे यहाँ ज़्यादा तो लाभ भला करने आए, लेकिन आप तो बात कारोबार की कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात लेकिन ये एक स्लाइड है, ये मैंने पढ़ी थी, ये अभी मैंने ऑटो की है, ये है कि हाउ इन्वेस्टर प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट। ये तो बात है यहाँ पाकिस्तान में चाहते हैं उर्दू में बात करते ही नहीं हम। अब ये मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ, मैं जरा मेरी बात जरा सुनिए, मैं आपकी बात आधा मिनट। जी जी प्लीज। बात ये है कि जो आदमी आता है ना इस मार्केट में, उसकी लंबी लंबी उम्र होती है, उसके ऊपर लंबी लंबी उम्र होती है, जब वो गेट में से गुजरता है ना, अकाउंट में गुजरता है, तो उनके जो उनके और जो बेड़े पीछे कतार में लगी हुई है वो ऊन वाली, और वो भी अंदर आना चाहती हैं, देखती हैं कि वो ऊन का आगे को चला। मुझे बताएं आपके CPTL का क्या बना है, जनाब टेक्सटाइल का क्या बना है, PTC का क्या बना है, एस्पोर्ट का क्या बना है, ये बताएं। एनर्जी का क्या बना है, बैको उसका क्या बना है। यानी कि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी की कमाई जो है 10, 12, 15, 20 साल जितनी ज़िंदगी है उसकी मेहनत करके पास लाता है, तो उसके पास से कौन ले जाता है? वो ले जाते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं वो देखते हैं कि किस तरह इनको मतलब इनसे पैसे छीनने हैं। ये मैंने 5-7 कंपनी लिखी हुई हैं, ये मेरे पास इसकी काफ़ी मिलता है, लेकिन क्या करें, इससे जाकर पूछें। यहाँ पहले भी मीटिंगें होती रहती हैं, मीटिंगों में मैं आया हूँ, सर कमाई करके चले जाते हैं। आप चूँकि बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको उम्मीद करती है, लेकिन बात ये है कि बात तो करें कि जिनको बुलाते हैं उनके ऊपर उनकी क्या कर सकते हैं आप? देखिए होगी सर बात जी। ये कैपिटल मार्केट की जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, और हम एक्टिव मोड में काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इसमें नॉर्मली इन्वेस्टर इसमें स्टक हो जाता है। कंपनी कोई भी अगर वो डिफॉल्टर सेगमेंट में गई है, वो ज़ाहिर उसका बिजनेस किसी भी रीज़न के साथ, हम उसको डिस्कस नहीं करते किस रीज़न के साथ वजह से वो डिफॉल्ट हुई है कंपनी, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनके ऊपर हमने एक लॉ एप्लीकेबल किया हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मटेरियल इंफॉर्मेशन वो रियल टाइम अपने इन्वेस्टर्स को देंगे। मतलब मेरी कंपनी में कोई जो मैंने एक वादे किए हुए थे बड़े, जिसकी बेस पे मैंने इन्वेस्टमेंट ली थी, अब उसमें ये अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से ये मसला आ गया, तो वो अनाउंसमेंट देती है कंपनी। इन्वेस्टर जो एक्टिव इन्वेस्टर बैठे होते हैं वो डेली बेसिस पे स्टडी कर रहे होते हैं कंपनीज की अनाउंसमेंट, जो कंपनी अनाउंसमेंट कर रही होती है। अब वो देखते हैं कि कंपनी प्रॉब्लम में जा रही है या जा सकती है, वो उसी वक्त उनके पास ऑप्शन होती है कि वो अपनी होल्डिंग बेच दें ताकि वो नुकसान ना हो। नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है कि हम लोग जो है ना, क्योंकि मार्केट की हम किसी न किसी की राय के ऊपर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। किसी से पूछते हैं कि यार बताओ आपने मार्केट में जाना कौन से शेयर में, खुद हम नहीं देखते, ठीक है।
एक ये रीजन है। तो तीसरी चीज ये कि हैस्कोल की आपने हैस्कोल प्लीज कंप्लीट कर दें। हैस्कोल की आपने आपकी बात को सुनने की तैयार हूं, लेकिन ये बात है कि एक चीज मैं 97 से मुंसलिक हूं, 97 और कुछ नहीं को मैंने 2-3-4 करोड़ का नुकसान किया। अभी अगर मुझे नहीं समझ आनी तो कब आएगी, कबर में आएगी जाके। ये बात है सुने मेरी, आप मेहरबानी सुनेंगे तो आप हमारे लिए शायद को बेहतर कर सकते हैं। पहले उन्होंने आपसे कहा था आप बात कंप्लीट कर लें, देखें आप या तो जवाब दे दें या फिर आप एक साथ पूरी तरह बात कर लें फिर उनसे जवाब दें। आप पूछ लें, मुझे भी पता है, मैं भी सर्च करता हूँ, आप पहले आप दो दफा टोका है, मैं खामोश हो गया हूँ, मेरी तरह सुन ले बात। अगर आप नहीं सुनना तो इजाजत दे दें, मैं कर लेता हूँ। ये पीटीसीएल मेरे साथ मेरे पास 14 साल से बड़ा हुआ है पीटीसी, ये 2-4-5 रुपया डिविडेंड भी देता है। अब क्या हो गया है, कोई कुछ बताने वाला नहीं, स्टॉक चेंज में कोई ऐसा शोभा नहीं, ऊपर से ब्रांडेड लिखा हुआ है लेकिन कोई बताने वाला नहीं कि आपका क्या हो। 15.5 रुपया सिटी वो खरीद क्या अभी बैको 15.5 रुपया खरीदी है, 5 रुपया हो गया। कहाँ भाई उसको क्या हो गया, वो तेल बनाना छोड़ दिया, रिफाइन करना छोड़ दिया। इसके लिए मुतल्लिक सोचें कि जो लोग आते हैं वो आपके इन्वेस्टर 80% जो है ना 80% 85% लोग जो हैं वो छोटे सारे तो एक नहीं बन सकते, DHL वाले भी नहीं बन सकते सारे, ना नस्कोल वाले बन सकते हैं, ना ही वाले बन सकते। वो कितने फीसद हो, 5% भी नहीं हो। जो लोग फंसे हुए हैं इसमें, उसमें अगर निकालने की कोशिश करनी है तो ठीक है, लेकिन भैया आप मेहमान हैं हमारे साथ। देखें बात ये है कि इन्वेस्टर जो है ना वो जब एक बार किसी कंपनी के शेयर लेता है तो उसकी रीज़न पीछे क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, क्या पैसा कमाना, कि यार ये होता है कि ये शेयर आज लिए तो आप प्रीमियम पे लेते हो, अगले 6 माह में, साल में, हफ्ते में उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है। दूसरा ये होता है कि हमारी इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी होती है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं कि कंपनी पे आउट अच्छा कर रही है, डिविडेंड दे रही है, तो वो हम शेयर उठा के अपने पास उसका पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। इन्वेस्टर ने के लिए कभी भी ये बाइंडिंग नहीं है कि वो एक कंपनी का शेयर उसने लिया और वो अगर लॉस में गई है या वो कंपनी को धंधा सही नहीं कर रही उसको ना बेचे। उसको यही हम इन्वेस्टर को अवेयरनेस दे रहे हैं, जितने अपनी इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन कर रहे होते हैं कि भाई अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसके शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है, इंस्टेड ऑफ कि आप अपना नुकसान करते जाएं इतने सालों तक और उसको गले लगा के रखें शेयर को, तो ये तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अब अगर पीटीसी ने वो डिविडेंड नहीं दे रहा और वो अपने फाइनेंशियल जो डिस्क्लोजर कंपनी दे रही है वो उसकी बैलेंस शीट देखें, उसके जो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखें, वो क्या बता रहे हैं, उनकी जो डेट देखें कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, ये सारी चीजें देख के इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि इसके मैंने शेयर रखने हैं या नहीं रखने। तो यही अवेयरनेस है जो कि इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो लॉस कर बैठते हैं। और हम 10-10, 20-20 साल से शेयर्स रखे हुए हैं अपने पास और इस उम्मीद पे रखे हुए हैं कि वो अपनी पहले वाली जगह पे जो कि आज से 10 साल पहले थी उस पे चले जाएं। तो ये स्ट्रेटजी गलत है। देखें और हैस्कोल की देखें, एक कंपनी बड़ी अच्छी लिस्ट हुई 2014 में लिस्ट हुई हैस्कोल की, 56 रुपए 50 पैसे पे कंपनी की ऑफर प्राइस निकली। उसके बाद अगले 1.5 से 2 साल में हमने देखा कि उस शेयर की जो 300 रुपए अराउंड उस पे वो 350 तक ट्रेड होता रहा, लोगों ने पैसा बनाया और उसके बाद एग्जिट करके निकल गए। अब ये जो एसएससीपी ने फाइल किया है या जो ऑडिट फर्म होती हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं कंपनी की, चेक एंड बैलेंस होते हैं, वहां पे हमें एक पता चली रेगुलेटर्स को चीज कि जी उसने तो जो अपनी एलसी को जो लेना है बाहर से जो धंधा, उसकी जो बैड प्रैक्टिसेस और ऑडिट फर्म ने भी उसको हाइड किया और वो सारा कुछ जैसे वो इंफॉर्मेशन आई उसके शेयर की वैल्यू नीचे आने जब शुरू हुई उससे पहले उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास आ गई। वो रेगुलेटर पीएसएक्स वेबसाइट तमाम सिक्योरिटी ब्रोकर के पास इंफॉर्मेशन आ गई। इन्वेस्टर जो कि उस वक्त एक्टिव थे, विजिलेंट थे, उन्होंने उसी वक्त अपना शेयर बेचे। सेल का प्रेशर आया, 7.5% सर्किट ब्रेकर डाउनफॉल लगे और नीचे जाते गए। अब अगर
अगले 3 माह 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं इस नैविंग कम्युनिटी के, अभी भी हम उसका शेयर रख के बैठे हुए हैं। तो ये तो हमारा अपना इसमें है ना कि हमें वो सेल नहीं लेकिन ये देखें कि ये शेयर अगर 75 का खरीदा है या 64 का खरीदा है ये शेयर, और वो अगर 5 रुपये की और देता भी पैसा नहीं, तो फिर उसको चैलेंज के अगर 75 रुपये वाला शेयर अगर आप ये कि आप कहना चाह रहे हैं तो ये आप बेच दें, तो बेच के अगर वो बेच देता हूँ। एक चीज़ खरीदी है ये कौन सी JSC है जहांगीर स्पीकी वाला, वो 33 रुपये 33.5 रुपये का खरीदा है, अगर वो खरीदा 15 रुपये में बेच दिया 64 वाला, तो 33.5 रुपये वाला खरीदा है जो ये फालतू चलता है, चल रहा है, बिक रहा है, लेने वाला भी है देने वाला भी है, तो वो अगर आ जाए 10 रुपये वो भी 10 रुपये पे आ जाए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ आपको इतराज़ करना नहीं है, आप ये अदारा बनाया आपने ये कि आपने इस कंपनियों को तरक्की देने की, ठीक है आप करें, लेकिन ये अदारा भी को बनाने वाला सामने आया है कि ऊपर जो गारंटी का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो यहाँ तो मेंबर जो खरीदारी करता है कमीशन में लिखता है, ये लिखता है, वो कम से कम अपने क्लाइंट को तो सही लेकर चले। अच्छा, आपकी बात बीच में, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, मेरे बिल्कुल आपके साथ हमारे DME कैपिटल के रीजनल हेड बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं और कंसल्टेंट एडवाइजर भी हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने इनके पूरे गुजरांवाला में लॉट ऑफ बड़े ज़्यादा ये इनके इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये गाइड भी कर रहे हैं और इनके थ्रू ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर आप बताएं कि आप इन्वेस्टर्स को ये सारे जो कंपनी के अप्स एंड डाउन्स हैं, लॉस मेकिंग का सारा प्रॉपर गाइड करते हैं या नहीं करते? हमारी कंपनी DME कैपिटल जो है ये जैसा ही आपने बताया कि हम 1992 से गुजरांवाला में यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा हम लार्जेस्ट और टॉप फाइनेंशियल कंपनी है जो कि डील करती है फुल स्केल फाइनेंशियल सर्विसेज में, जिसमें हम ट्रेडिंग मार्केट, इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग, रिसर्च, रिटेल ब्रोकरेज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये अपने इन्वेस्टर को टाइमली अपडेट करके हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट है जो किसी भी शेयर की जब वो बैलेंस शीट आती है तो उसके मुताबिक वो अपने तमाम क्लाइंट को एक ईमेल सर्कुलेट करते हैं, एक रिसर्च सर्कुलेट करते हैं जो कि उनकी रजिस्टर्ड ईमेल जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये कंपनी इन दिनों में इन क्राइसिस का शिकार है और ये फाइनेंशियल मसाइल के साथ गुजार है और आप इन जैसे इंफॉर्मेशन को ऑफर कर सकते हैं, दे सकते हैं या अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो यू कैन प्ले दैट कंपनी विद सर्टेन स्टॉप लॉस। मिसाल के तौर पे कि एक कंपनी अगर गिर रही है तो टेक्निकल लेवल पर जाकर उसको बताते हैं, टेक्निकल लेवल होता है, लेकिन हम फोर्सफुली किसी क्लाइंट का स्वाप बेच नहीं सकते। बिल्कुल वो तो डेफिनेटली अलाउ नहीं है, हम बेच नहीं सकते, हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि आप इन लेवल्स के ऊपर अगर शेयर होल्डर कर रहा है तो यहाँ पे आप ऑफलोड कर दें या कुछ डिफरेंट रिड्यूस कर दें। लेकिन होता यह है कि लॉस को कोई प्रूव करने के लिए हौसला चाहिए होता है, वो तैयार नहीं होता और अमूमन ये भी होता है बस का इंसान की कि अब चूँकि शेयर इतना टूट गया है, इतना कम हो गया है, तो यहाँ से शायद में बाउंस आ जाए, यहाँ से शायद ये शेयर बढ़ जाए, तो मोस्टली पीपल जो है इस तरीके से थोड़ा एग्जिट नहीं ले सकते, प्रॉपरली टाइमली फैसला नहीं करता, तो जिस वजह से ये इस लॉसेस का ये लॉसेस होते हैं। और अगर ब्रोकर के एंड में से तो ये चीज़ें टाइमली बताई जा सकती है। और जो डिविडेंड की सर बात की है कि डिविडेंड एज पर लॉ कोई भी कंपनी के ऊपर ये मैंडेटरी नहीं है कि डिविडेंड देना। नॉर्मली जो उसकी टॉप लाइन ग्रोथ है जितनी सेल हुई और बॉटम लाइन ग्रोथ से जो इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स उसके ऊपर वो ये भी करते हैं, कई कंपनी को डिविडेंड देती हैं लेकिन कहीं उसी प्रॉफिट को दोबारा अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके उसको बिजनेस को आगे एक्सपेंशन के लेता है। थैंक यू वेरी मच। तारक यू क्लास का बात क्वेश्चन से सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो मेरे लोग आपने डालने हैं, आप निकालने हैं और अगर आप टाइमली आपने बेट नहीं किया आपके पैसे गए
फाइनली बेट कर दिया तो फिर आपकी बिजनेस तो नहीं ना ये तो युवा हो गया। नहीं, युवा नहीं है। बेसिकली जैसा कि साथ ने बताया कि जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस कंपनी की बैलेंस शीट देखें, उसके फाइनेंशियल देखें, उसके बारे में अपने ब्रोकर से, अपने कंसल्टेंट से स्टडी करें, उससे राय लें कि थोड़ा इन्वेस्ट करने की कंपनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस कंपनी के पिछले 5 साल हिस्ट्री देखनी होगी कि ये पिछले 5 साल में अपने शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट डिलीवर कर रहा है। क्या ये कंपनी कंटिन्यूसली 5 ईयर से बोनस और डिविडेंड और दूसरे बेनिफिट्स दे रही है या इसने रोके हुए हैं। लेकिन अमूमन होता ये है कि जो कंपनी डिविडेंड्स, बोनस और दूसरे प्रॉफिट्स डिलीवर करती हैं उनका रेट मार्केट से ज़्यादा होता है। तो लोग प्रेफर करते हैं छोटे स्टॉक्स में, पैनी स्टॉक्स में जो कि 10 रुपये से नीचे होते हैं और वो ऑलरेडी डिफॉल्ट काउंटर पे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। कोई मेंशन होता है कोई रीजन डिफाइन कोई ना कोई जो भी कंपनी है अगर वो डिफॉल्ट काउंटर के ऊपर है तो उसके ऊपर मार्क हुआ होता है डी। इट मींस कि ये डिफॉल्ट काउंटर पे और ये किसी वक्त सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लोग उसके अंदर सरमायादारी करते हैं। उस सब्जेक्ट में उनका ये है तो लालच का फैक्टर आ जाता है, ग्रीड का फैक्टर आ जाता है। लेकिन आज भी जो लोग वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड्स वाली कंपनी जो काम करते हैं और सॉलिड कंपनी जो काम करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया नहीं करती और उनको बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू। बाकी मुल्क की राजनीति के ऊपर विचार होते हैं काफ़ी ज़्यादा कि ओवरऑल जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है ये भी इफेक्ट करता है और जियोपॉलिटिकल कंडीशन भी इफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट में। जैसे रशिया और यूक्रेन की जो ऑयल के ऊपर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं तो ये भी चीज़ें कंपनी के मार्जिन बाद में कम हो जाते हैं और बाद में इससे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। मैं इसमें सॉरी एक चीज़ इन्वेस्टमेंट जो ये दो स्ट्रेटजीज, एक डे टू डे डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करना, उसमें इतनी इन्वेस्ट किया होना वो प्रॉफिट और इसमें टेक्निकल एनालिसिस होता है, डिफरेंट मूविंग चार्ट्स हैं, कोई कैपिटल हैं वो उस पर लगा के आप ट्रेंड की बेस पे बाइंग सेलिंग करते हो। उन्होंने सॉफ्टवेयर लिखे होते हैं। एक होता है जिसको हम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 साल 5 साल 10 साल और उसमें आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है, ठीक है। और वो फिर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके बिल्ड करते हो, उसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वो मार्केट की स्टेट के मुताबिक आप करते हैं, वो अपडेट करना पड़ता है। लेकिन वो फिर आपकी स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट की, वो डे ट्रेडेड करना चाहिए।